So, greetings and namaste to everyone who has shown their interest in our franchisee. I am so happy to see you together here. Today's session is all about opportunities in laundry industry with Fabrico. So, without any further ado, I would first introduce our CEO, Mr. Bhupendra Singh, who will give you deep insights of the booming laundry industry. So, over to you, sir. Hi guys, hi everyone, whomsoever has joined. We welcome you all on the behalf of the whole Fabrico team. So basically, to begin with the laundry industry, how exactly we ventured into the laundry industry and what Fabrico is. So Fabrico was started in 2019 by me and my co-founder, Mr. Sumit Saxena. We both are engineering graduates. I'm a civil engineer. He's a computer science engineer from IIT. The whole idea was to organize the laundry space, which is a huge opportunity. I mean, in the last few 20-30 years, you might have observed there is a revolution in each of the industries. अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आए, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स चेन्स आई, then there were e-commerce players like Zomato and Swiggy. Those people came and organized the whole pickup and delivery stuff, right? So I started in 2015 in Bangalore with a company called Flashdoor. We were a funded company. We started with online pickup and drop. At that particular point of time, we realized, yes, there's a potential. There's a customer who wants to outsource their laundry. We used to do around 200 pickups in Bangalore itself, but we were outsourcing it to the vendors. Now, post that learning, what we observed is that we cannot give proper quality until unless we have our own stores. And obviously, in order to have our own stores, we cannot basically, there's a lot of money involved in opening all the stores by ourselves. That is the reason we came into franchising, right? When we entered into franchising, we made sure that we got the best possible team in this industry. If I talk about people in the industry, we have got Mr. Avdesh, who has been the pioneer in setting up the dry cleaning centers all over India. We have Mr. Shashi Srivastav, who I will introduce it later. He has been involved in basically setting up the biggest laundries in India, laundries and dry cleaning setups in India. Then simultaneously, we have sorted out every domain and figured out कि हर एक domain में किस एक तरीके की जरूरत है और कौन सा वो आदमी है जो उसको organize कर सकता है. As you can see in the PPT as well, it's a basically $35 billion industry as per the Eurometer 2022 forecast, if I am not wrong. And the industry is growing on the rate of 4.96%. I mean, every year on year, it's growing. और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस धंधे में अभी कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ. नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर इन इंडिया यू कैन टेल कि जिसने कुछ अच्छा काम किया हो. एंड दैट वाज द अपॉर्चुनिटी वी गॉट. यस, आई मीन देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम व्हिच इज कमिंग अप. People in India in the past 5 to 10 years have started using laundries and dry cleaning, outsourcing their laundry and dry cleaning. People have started buying expensive clothes, and that is the reason that we came into the picture and thought about organizing this space. When we thought about organizing this space, we always wanted to make sure that we don't want to go just offline, or we just don't want to go online. We wanted to create an omni-channel model, and that is the result where we, as Fabrico, have always focused on the technology part of the aspect. I mean, technology part of the laundry and dry cleaning. Now, what I will do is, without much ado, I'll ask Mr. Avinash to start explaining the models of Fabrico. Like, first is the model of Prime, then Mr. Shashi would be explaining about Elite. First, I'll give you about Prime. Why exactly we started Prime? Fabrico Prime is a concept which is basically set up in 400 to 500 square feet. The whole idea of setting Fabrico Prime was to make sure that in two-tier cities, all the two-tier cities, we can give live dry cleaning process and we can show the live dry cleaning to the customers. Now, Mr. Avinash, if you are there, you can just start with the explanation of Fabrico Prime. Okay. Thank you, Bhupendra. Thank you everyone present over here. It's a great opportunity for me to explain myself and Fabrico about the Prime model. So Fabrico Prime is a live dry cleaning and laundry concept. So before I tell you more about what is Prime model, let me first tell how this Prime model came into action. So आजकल के टाइम में क्या है ना सर कि सबकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है. लोगों को 1 से 2 हजार रुपए की शर्टें खरीदना, 2-3 हजार की जीन्स खरीदना, लेडीज की जो साड़ी आती है 3 से 4 हजार से स्टार्ट होती है. लोग कपड़े तो महंगे खरीद रहे हैं, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि इनको प्रोसेस करने की नॉलेज नहीं होती हमारे अंदर. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं सबसे अगर पूछूंगा, हर कपड़े में एक वॉशिंग इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है.
बट हार्डली एनीबडी सीज इट। मैं भी नहीं देखता था, जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ तब मेरे को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चली। तो लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास का कोई लोकल धोबी होता है, उसको बुलाते हैं, उसको कपड़े देते हैं। वो कपड़ों के साथ क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, क्या पानी, किस पानी में यूज करता है, कैसे केमिकल यूज करता है, नोबडी हैज नो आइडिया। सो जो ट्रीटमेंट वो 100 रुपए कपड़े के साथ दे रहा है, शायद वो 10,000 के कपड़े के साथ भी सेम ट्रीटमेंट दे रहा होता है। सो इसलिए व्हाट वी थॉट कि एक ऐसा मॉडल चाहिए जहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। देयर शुड बी मशीन्स ओवर देयर, गुड क्वालिटी डिटर्जेंट जो केमिकल्स रिएजेंट जो यूज हो रहे हैं वो अच्छे सारे यूज होने चाहिए। वो सारा एक सेटअप क्रिएट करें दैट पीपल कैन सी व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली विद देयर क्लोथ। सो दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस मॉडल ऑफ फैब्रिको प्राइम। इसमें ये है कि आपका वॉशिंग, आयरनिंग, डिलीवरी एट होम, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सेकेंडली मैं आता हूँ, अगर क्या स्पेस रिक्वायरमेंट रहता है हमारा, तो एक फैब्रिको पर्टिकुलर आउटलेट में हम लोग मिनिमम 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो हम आउटलेट 300 स्क्वायर फीट में भी खड़ा कर सकते हैं, प्रॉपर्ली बिल्ड कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि 300 स्क्वायर फीट में जब आपका पीक सीजन आएगा, आपके पास इतने कपड़े आएंगे, आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए हमारी जनरली रिक्वायरमेंट रहती है कि हम 400 स्क्वायर फीट एरिया का एक प्रॉपर आउटलेट खोलें। इसके अलावा सर्टेन पॉइंट्स हम हमेशा रखते हैं कि स्टोर जो भी हो आपका, वो एक प्रॉपर रोड साइड स्टोर हो, जहाँ की सामने की रोड अच्छी चलती हो। बिकॉज अगर आप हमारे फोटोज या हमारी वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेजेस में चेक करोगे, सो यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल आउटलेट्स वी आर क्रिएटिंग। तो एक आपकी खुद की मार्केटिंग, लाइफ टाइम मार्केटिंग हो जाती है कि अगर आपका प्रॉपर आउटलेट एक अच्छे रोड साइड के पास में खुलता है। सेकेंडली ये रहता है कि ग्राउंड फ्लोर बहुत ही ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। टॉप फ्लोर, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आउटलेट खोलता हूँ, तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारे वॉक इन कस्टमर्स कम हो जाते हैं। सेकेंडली अनदर पॉइंट इज कि हम लोग ज्यादातर क्राउडेड मार्केट प्लेस अवॉइड करते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम ओवर हेयर यहाँ पे ये रहती है कि जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहते हैं वहाँ पर पार्किंग का इश्यूज रहता है। एंड इन जनरल नोबडी गोज फॉर शॉपिंग कैरिंग देयर डर्टी क्लोथ्स विद देमसेल्फ। तो ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जनरली प्रेफर किया जाता है कि जहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर हो, कोई सैलून हो, कोई सुपरमार्केट हो। अगर ऐसी जगह पर हम अपना पर्टिकुलर आउटलेट ओपन कर रहे हैं, तो इससे दोनों आउटलेट को फायदा रहता है। हमारा भी ट्रांजेक्शन मूवमेंट अच्छा होता है, एंड सेकेंडली जो भी आसपास की लोकेलिटीज होती है उनका भी मूवमेंट अच्छा बनता है। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि हमें एक पर्टिकुलर आउटलेट कहाँ ओपन करना होता है। एंड सेकेंडली दिस प्राइम मॉडल इज अ वेरी हाइपर लोकल मॉडल। अगर मेरे को अपने ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने होंगे, तो मैं 10 किलोमीटर दूर जाके किसी और लॉन्ड्री को नहीं दूंगा। मैं अपने आसपास ही 1-2 किलोमीटर में ही कोई अच्छी लॉन्ड्री सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो सेम मॉडल ये भी है। प्राइम में हम स्टार्टिंग में 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस एक प्रॉपर टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूँ एक कोई डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोग उस 3 से 4 किलोमीटर में रहते हैं। विच अगर मैं 4 से 5 लोगों का एवरेज लेता हूँ एक फैमिली, तो 20,000 फैमिलीज आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ 3 to 4 किलोमीटर। 20,000 में हमें सिर्फ टारगेट करना है 2%, विच इज 400 फैमिलीज। इफ 400 फैमिलीज गेट कनेक्टेड विद दिस प्राइम मॉडल, तो हमारा आउटलेट एक 100% एफिशिएंसी पे रन करना शुरू कर देता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दिस ऑल बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर रिटेंशन का प्रोग्राम रहता है। तो ये एक ब्रीफ था कि प्राइम मॉडल कैसे बनता है, कैसे ओपन करते हैं हम लोग, कैसे लोकेलिटी सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे एक मार्केट का पूरा इंस्पेक्शन करके हम लोग आते हैं कि यहाँ पे प्राइम मॉडल लगाना है। सेकेंडली अब हम बात करते हैं इनलेट ऑफ द आउटलेट। आउटलेट के अंदर क्या मशीन्स लगती हैं, क्या डिटर्जेंट यूज होते हैं। सो वी आर यूजिंग द बेस्ट इन क्लास मशीन। पूरे वर्ल्ड में हमने अच्छी खासी रिसर्च की है। वी हैव बीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, वी हैव बीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हमने लॉन्ड्रीज की इंडस्ट्री की पूरी रिसर्च करी है कि हमें पता चले कि कौन सी मशीन हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल रहेंगी। सो वी हैव अ टाई अप विद अ कंपनी कॉल्ड एज अलायंस। वी हैव अ टाई अप विद एन इटालियन कंपनी नोन एज फैगोर डोमस। इनसे हमारा प्रॉपर टाई अप है। हमारे यहाँ पे 2 मशीन लगती है प्राइम मॉडल में। एक लॉन्ड्री मशीन रहती है विच इज 10 kg उसकी कैपेसिटी रहती है। दीज ऑल मशीन आर हाईली प्रोग्रामेबल। इनमें पहले से ही डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए रहते हैं कि हैवी लोड्स का अलग ऑप्शन है, और आपका क्या कहते हैं जो काफी हैवी लोड हो गया, उसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लोथ जो होते हैं उसके अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें इसमें अराउंड 30 to 40 मिनट लगता है आपका वॉशिंग में, एंड 30 to 40 मिनट लगता है ड्राइंग में। सो यू कैन सी हाउ एफिशिएंट दीज मशीन आर एक्चुअली। तो सेकेंड मशीन जो हमारी रहती है वो सॉफ्ट वॉश वेट क्लीनिंग की मशीन रहती है। दिस इज इटसेल्फ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इन द मार्केट। आज के टाइम पे 90 से 95% जो ड्राई क्लीनिंग इंडिया में होती है ना, वो पेट्रोल और एमटीओ का इस्तेमाल करके होती है। नोबडी इज that much advanced they are using these sort of a machine. So we have actually read the market and we have brought these machines from Europe, from America,
जिनको हम यहाँ पे अपने आउटलेट में प्लेस करते हैं, एंड दीज आर वेरी एफिशिएंट इन प्रोसेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ। तो ये दो मशीन रहती है। एक सिंपल सा मैं आपको चीज बताता हूँ, कपड़े की जो क्वालिटी होती है वॉशिंग की, वो दो चीजों से डिफाइन होती है। First is your machine. Second is the products and the detergent that you are going to use in that machine. So इसमें भी हम लोग ने बहुत अच्छा एक टाइप किया हुआ है। देयर इज अ जर्मन कंपनी नोन एज साइट, SCITZ। ये 150 साल पुरानी एक जर्मनी कंपनी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कमर्शियल लॉन्ड्री में जो केमिकल डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं वो सारे इन्हीं के ही यूज होते हैं। हमारा इनसे ऑफिशियल टाइप है। वी हैव शशि जी, ही हैज वर्कड इन दैट कंपनी। उनसे हमारा एक अच्छा टाइप करा के हमारे पास स्पेशल प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। एज यू कैन सी इन द पीपीटी, द मिडिल फोटो शोज सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट जो हम लोग आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं अपने आउटलेट में। सो दिस इज हाउ एन आउटलेट, एक आउटलेट में दो मशीन्स रहेंगी। एक आयरन टेबल का सेटअप भी किया जाता है, स्टीम आयरन का सेटअप किया जाता है, टेफ्लॉन कोटेड मशीन्स रहती है हमारी। एंड इसमें एक नई चीज है जो मोस्टली क्या कहते हैं हम लोग 5 स्टार होटल्स में, बड़ी लॉन्ड्रीज में देखते हैं कि 20 जितनी मशीन रहती है इसके ऊपर टेफ्लॉन होता है, नीचे आपका एक वैक्यूम लगा रहता है। सो वेन एवर वी आर कीपिंग अ क्लोथ ऑन दिस टेबल, वैक्यूम क्या करता है उस कपड़े को थोड़ा सा सक करता है नीचे। एंड स्टीम आयरन जब हमेशा किया जाता है, देयर इज ऑलवेज अ गैप ऑफ 2 से 3 मिलीमीटर का गैप रहता है। तो इससे जो कपड़े जलने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो इससे एक हमें एज मिलता है फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स कि हम एक नई चीज, नई टेक्नोलॉजी को लेके आए हुए हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये एक पर्टिकुलर आउटलेट बनता है। मोटा मोटा मॉडल हमारा यही है। एक 400 स्क्वायर फीट का आउटलेट, एक रिसेप्शन, दो मशीनें, आयरन टेबल का सेटअप, पीछे हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, एंड एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। व्हाट वी आर डूइंग इज बीइंग विजिबल ओवर हियर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी रिटेल आउटलेट जो ओपन होता है वहां पर कुछ ना कुछ खर्चे रहते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमने इसको डिवाइड किया, एक फिक्स रहता है, एक वेरिएबल रहता है। फिक्स में आपकी दो चीजें आती हैं, रेंट एंड अनदर पॉइंट इज सैलरी। रेंट ज्यादा, अगर आप हमारा अगर पोर्टफोलियो चेक करोगे तो जितने भी हमारे आउटलेट है, वी हैव नॉट टारगेटेड सिटी लाइक दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर। रीजन बीइंग, अगर आप यहाँ पे 400-500 स्क्वायर फीट की जगह ढूंढने जाते हो, सो व्हाट यू विल फाइंड, पहले तो इट इज वेरी टीडियस टास्क फाइंडिंग अ प्लेस ऑफ दिस मच एरिया। सेकेंडली, दे विल आस्क यू अ रेंट ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का रेंट मांगना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट फिजिबल इन कैलकुलेटिंग योर ROI इन द कमिंग ईयर्स। So that's why we are targeting developing cities, 2 tier cities, जहाँ पे आपका रेंट एक 30-40 की रेंज में रहता है। अभी तक हमारा जितना एक्सपीरियंस है, वी हैव मैक्सिमम गॉन टू द रेंट ऑफ 50,000। तो उस पर भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना इज अ इजी टास्क, बट जहाँ 1 लाख की बात आती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सिटीज हमें देखना है। मैंने आपको लोकेलिटीज के बारे में पहले ही बता दिया कि कैसी जगह देखनी है हमें। सैलरीज में हम लोग शुरुआत में 3 लड़के हम लोग स्टार्टिंग में रखेंगे। दे वुड बी अ मैनेजर हु विल कलेक्ट द क्लोथ एंड डू ऑल द बिलिंग पार्ट। एक डिलीवरी बॉय होगा हमारे पास जिसका काम होगा सारा कपड़े कलेक्ट करना एंड प्रॉपरली टाइमली डिलीवर करना। इन स्टार्टिंग विल कीप वन ऑलराउंडर जिसका काम होगा कपड़ों को प्रोसेस करना, वॉशिंग भी करना एंड आयरनिंग भी करना। एज पर द लोड आपका जैसे इंक्रीज होता है, विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू अदर पीपल। कमिंग टू द वेरिएबल पार्ट, ये आपका फिक्स हो जाता है। वेरिएबल में 3 चीजें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, डिटर्जेंट एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं कितना वर्कलोड आपके आउटलेट पे आ रहा है। जितना ज्यादा काम होगा उतनी ज्यादा डिटर्जेंट यूज होगा, उतनी मशीन चलेगी तो उतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतना ही पैकेजिंग प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज पर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अराउंड 50+ आउटलेट, ये हमें पता चलता है इट रेंजेस अराउंड 15 to 20% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 लाख का रेवेन्यू महीने में कर रहे हो तो ये आपका नियर अबाउट 50,000 to 60,000 एक्सपेंस इसमें आता है। ऑल इन ऑल मैं अगर सम अप करूँ तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री एक बहुत ही हाई मार्जिन गेम है। बहुत लोग प्लेयर्स इसमें एंटर नहीं हुए, सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस प्रॉपर्ली। लेकिन अगर हम देखा जाए तो सिर्फ लॉन्ड्री में अराउंड 50% मार्जिन रहता है एंड ड्राई क्लीनिंग का मार्जिन कैन एक्सटेंड टू 60 to 70%। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हमारी महीने की सैलरी, महीने की सेल 4 लाख रुपीज की हो रही है। अगर 4 लाख की है, अगर मैं सैलरी पकड़ता हूँ 40,000, रेंट पकड़ता हूँ 30,000, तो 70,000 हमारा एक्सपेंस हो गया। वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं 4 लाख का 20% लेता हूँ विच इज 80,000 रुपीज, 80 + 70 हम लोग 1.5 लाख रुपीज एक्सपेंसेस एंड हमारा पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट में आता है। और भी छोटे मोटे कॉस्ट निकाल लेता हूँ तो 50 to 60% मार्जिन हम इस बिजनेस से लेके तो जा ही रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मॉडल जो फैब्रिको ने लॉन्च किया एंड ऑल ओवर इंडिया
हमारे मैक्सिमम प्राइम के मॉडल हैं। हम अभी यूपी में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, तमिलनाडु में हैं, केरला में हैं, एंड अभी रिसेंटली 2 आउटलेट हमारे छत्तीसगढ़ में ओपन हुए हैं, जिनका एवरेज पर डे सैलरी 7 दिन हुआ है आउटलेट को ओपन हुए, फिर भी ये लोग 7 to 10,000 एवरेज सेल कर रहे हैं आज के टाइम। सो दिस वाज ऑल इन ऑल अ प्राइम मॉडल, जो हमारा बहुत ही फेवरेबल एंड बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। नाउ आई विल हैंड ओवर टू मिस्टर शशि जी टू एक्सप्लेन अवर नेक्स्ट मॉडल ऑफ एलीट। थैंक यू एवरीवन। I'll just come in between before Shashi starts. So sir, देखिए, I'll tell to all the people कि what was the idea of Prime, behind Prime, and why we basically got Elite into the picture. आपको जैसे अविनाश ने बताया कि प्राइम हम लगाते हैं, प्रेफर करते हैं छोटे शहरों में, फॉर अ सिटी लाइक भोपाल, फॉर अ सिटी लाइक लेट्स से जबलपुर, फॉर अ सिटी लाइक इनफैक्ट वी हैव उरई, एक छोटा सा शहर है यूपी में, वहां पे भी प्राइम है, हमारे पास बहराइच में प्राइम है, गोंडा में प्राइम है। आइडिया क्या है कि हर एक छोटे शहर में वी हैव पीपल हु एक्चुअली गेट बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लेकिन उनको ये नहीं पता वो आसपास के शहरों में अपने ड्राई क्लीनिंग कराने जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्राइम लेके आया। एंड द आइडिया इज कि पूरे शहर के जितनी भी बेसिकली ऑडियंस है जो ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री आउटसोर्स करती है, एटलीस्ट टू केटर मोस्ट ऑफ देम इन द सिंगल स्टोर। सेकंड टू दैट, transparency, as Avinash was telling, the transparency is the most important thing. For example, a Fabrico customer can walk into the store at any given point of time. He can look over the garment कि उसकी garment की processing कैसे हो रही है, किस तरीके से हम spotting करते हैं, किस तरीके से हम color grading check करते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ फीमेल कस्टमर जिनका एक कपड़ा एक प्रॉपर टेक्सचर का है, जो मशीन में डालने से फट भी सकता है, या मशीन में डाल, उसके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि दिस इज ओनली फॉर हैंड वॉश, तो हम वॉश केयर लेबल को प्रॉपरली पढ़ के ये समझते हैं इस गारमेंट के साथ क्या करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम गारमेंट को प्रोसेस करते हैं टू मेक श्योर कि उस गारमेंट की लाइफ अगर 5 दिन की है तो वो 10 दिन की हो जाए, 10 दिन की है तो 15 दिन की हो जाए। इवेंचुअली गारमेंट लाइफ डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो विनाश वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्टीम आयरनिंग, अगर आप देखें तो कपड़ों की लाइफ डिपेंड करती है आयरनिंग पे। जैसे कोयल आयरन होता है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है तो ब्लैक कपड़ों पे, डार्क कपड़ों पे शाइन हो जाती है। That is the reason that we have got steam ironing into the picture, so that the efficiency is also increasing. For example, let's say कि आपका जो कोयल आयरन वाला बंदा होता है वो 4 से 5 मिनट लगाता है, 6 मिनट लगाता है एक कपड़े को आयरन करने में, जबकि स्टीम आयरनिंग में in our setup a guy can iron a garment in 1.5 to 2 minutes, right? So that was the basic difference between the normal laundry guys or normal laundry experience and Fabrico. And to start with Elite, now as Avinash explained earlier कि हमने छोटे शहरों में प्राइम लगाया, बड़े शहरों में हम एलीट इसीलिए लगा रहे हैं, आइडिया इसीलिए है क्योंकि बड़े शहरों में हम 400-500 स्क्वायर फीट के एरियाज नहीं खोल सकते। अब जब आपको शशि जी अच्छे से बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एलीट, वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि एलीट है क्या, क्या हमने एलीट, क्यों हम एलीट लेके आए हैं, एंड व्हाई एलीट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ all the bigger cities, let's say Kolkata, let's say Delhi, let's say Bangalore, let's say Hyderabad, and all these cities. Why Elite is the best model to adapt for in Fabrico, right? So Shashiji, please begin with the model of Elite. Shashiji, is it audible? Hello. Voice aa rahi hai aapko? Hello. Yes, it's audible. Yes, please. Hi everyone, this is Shashi Srivastava. Thank you, Bhupendra ji. Thank you, Avinash. Yeah, Avinash, you have explained Prime very well. Now, the point is, why Elite? As Bhupendra Singh ji is telling me that, telling us about this Elite model. Basically, Elite is a old traditional way doing things. This is called hub and spoke. But now is how to reorganize this hub and spoke model in a big cities like Delhi, Bangalore. I guess Shashiji, your voice is. Hello. I guess Shashiji, there's a network problem on his side. Avinash, am I audible? Yes, you are audible. So I'll start. I think Shashiji has got. Yeah, no problem. So I'll start with Fabrico Elite. So Fabrico Elite में क्या किया है हमने? Fabrico Elite में हमने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है, हमने पुराना धोबी का धंधा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अ सिटी लाइक बैंगलोर, देयर वर प्लेयर्स जिनके 30-30, 40-40 कलेक्शन पॉइंट पूरे शहर में होते थे। उस 40 कलेक्शन पॉइंट से वो सारे कपड़े उठा के 1 या 2 वैन लगा के
वो सारे कपड़े लेके जाते थे मदर स्टोर पे, मदर स्टोर इन द सेंस फैक्ट्री, राइट? सो दिस इज अ मॉडल विच वाज सक्सेसफुल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस मॉडल वाज दिस वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी नहीं आती थी, टर्न अराउंड टाइम नहीं आता था, और कस्टमर को क्वालिटी कंप्लेंट्स आती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर कलेक्टिंग गारमेंट्स फ्रॉम 5 कलेक्शन पॉइंट्स। अब 5 कलेक्शन पॉइंट्स पे, हर एक कलेक्शन पॉइंट पे 10 से 15 नए कस्टमर होंगे, तो 5 कलेक्शन पॉइंट पे आपके पास टोटल 100 कस्टमर हो गए। 100 कस्टमर अगर मैं 5 कपड़े भी देते हैं तो 500 कपड़े हो गए। अगर मैं 5 कलेक्शन पॉइंट से सारे कपड़े एक साथ मिला के लेता हूँ वहां से, और फिर उसको फैक्ट्री पे लेके जाता हूँ और फिर उसकी प्रोसेसिंग करता हूँ, तो पहली चीज तो ये कि उसमें फिगर आउट करना मुश्किल है कि कौन सा कपड़ा किसका है। सेकंड प्रॉब्लम वाज एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री। अगर मैं 500,000 कपड़े उठा के वहां पे लेके जा रहा हूँ, अलग अलग उनके प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मेरी मशीन की कैपेसिटी 20 किलो है, तो मैं उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता, उसकी एफिशिएंसी ही नहीं निकाल सकता। सेकंड टू दैट, अगर मेरे 5-10 कपड़े खो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उससे जो मेरा दिन का जो टोटल रेवेन्यू है उससे ज्यादा मेरा लॉस होता है। अब हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया है? हमने क्या किया है, हमने सेम मॉडल अप्लाई किया है। हमने एक मदर स्टोर लगाया। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड वन एलीट इन अंगामली। सो व्हाट वी हैव डन इज, ये हमने एक एलीट लगाया है, उसके साथ साथ हमने 5 कलेक्शन पॉइंट नियर बाय एरियाज में खोले हैं। सबसे पहला जो फायदा इससे हमें क्या होता है कि एटलीस्ट द होल एरिया, ऑल द होल सिटी नोज कि यस, someone called Fabrico is there at every nook and corner of the city. First point of Hello. marketing is visibility. Yes, Shashi ji, I think you are back. My voice is clear too? Yeah. You So guys? I was just explaining. I've just started with collection points and mother store. You can just carry on, please. Hello? Yeah, it's audible. Mike? Please go ahead. हाँ, मैं कहाँ पे था? Sorry, मैं some issue with the data. Hello? No problem. Please. Go Let's ahead. start So, from the hub and spoke model. Yeah. I was there on a hub and spoke model, जिसमें मैं ये कह रहा था कि हम एक फैक्ट्री सेटअप लगाते हैं सिटी के अंदर with 3 to 4 कलेक्शन सेंटर्स। इसमें क्या होता है कि सारा जो वर्क है प्रोसेस करने के लिए सेंट्रलाइज प्लांट में आता है। दिस सेंट्रलाइज प्लांट कैन बी अ फैक्ट्री सेटअप, or it can be a mother store also if you want. It can be a count with a counter also. So elite is basically we are collecting clothes from the customer from 3 to 4 collection center, and we are processing it to send it to factory for the processing. Number one, this is with the and this model is basically with the semi commercial also. ये एक semi commercial setup है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम रिटेल का काम तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर हमें 20 से 25 रूम के होटल्स मिल जाए, 1 या 2 स्पा हो जाए, अपना रेस्टोरेंट्स हो जाए, जिम हो, इनके भी कपड़े हम प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने एक 25 से 28 किलो का भी एक वॉशर सेक्टर रखा हुआ है, प्लस ड्राई क्लीनिंग मशीन है इसके अंदर। और इसके अंदर जो सेट ऑफ मशीन है उसके अंदर फ्लैट बेड प्रेस है फॉर आयरनिंग ऑफ योर बेडशीट्स, इसके अंदर स्पॉटिंग मशीन है, अपना पैकिंग मशीन है, ड्रेसिंग टेबल और बॉयलर तो है ही साथ में। सो दिस सेटअप इज बेसिकली रिटेल प्लस सेमी कमर्शियल, सो दैट अगर हम जैसे कहें, जैसे कि रिटेल के अंदर सीजन कभी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे पास काम करने के लिए अपना लोकल एरिया के अंदर हमारा जो कमर्शियल है वो भी हमें पूरा सपोर्ट करता है। सो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है एक ए टाइप टाउन के लिए, ए या बी के लिए। और इसके अंदर जैसे कि अविनाश ने बताया कि वी आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ साइड्स केमिकल्स, ये तो है ही। इसके साथ इसके अंदर सारा जो प्रेसिंग सिस्टम एक्सप्लेन किया इन लोग के अंदर विद टेफ्लॉन शू, ये भी है इसके अंदर। सो Elite is basically a complete successful model for a person who's interested to have both retail and commercial in your city. Thank you. Over to Bhupendra ji. Over to Bhupendra ji. Right. So to complete Elite, again, as Avinash was explaining, we have sites and domus into the picture. Why we have got domus? Why we have got domus machines and bigger capacity dry cleaning machines? प्रॉब्लम ये आती है कि बड़े शहरों में यूल एक्सपीरियंस की बड़े बड़े गाउन्स आते हैं, बड़े बड़े डुवे कवर्स आते हैं, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स आते हैं, अच्छी क्वालिटी के लिनन्स आती हैं। इनको प्रोसेस करने के लिए वी हैव गॉट 28 kg वॉशर फ्रॉम डोमस, जिसमें आप एक वेडिंग गाउन भी डाल सकते हैं, एक लहंगा भी चला सकते हैं, एक आप महंगा डुवे कवर भी डाल सकते हैं, और सारी चीजें आपकी इस ड्राई क्लीनिंग मशीन में प्रोसेस हो जाती हैं। एक और यूएसपी जो शशि जी शायद मिस कर गए,
that is a shoe cleaning. What we have got here is we are yes. So Shashi ji, please explain about shoe cleaning as well. What we have missed, then we will come up to the next point. Yes. See, इसके अंदर एक शू क्लीनिंग का भी है. शू क्लीनिंग आज की डेट के अंदर लोगों के जो शूज हैं, फॉर एग्जांपल अपना स्पोर्ट शूज है, लेदर शूज है, अब ये टाइम आ गया लोगों का कि लोग अब इसको अपना ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए अब इसको शू क्लीनिंग, हमारे तो शू क्लीनिंग के लिए भेजते हैं आज की डेट में. और इस सिस्टम के अंदर शू क्लीनिंग हमने इन्वॉल्व किया हुआ है. इसके अंदर वी हैव इटालियन मशीन एंड इसके अंदर सारा इसका शू का क्लीनिंग, साथ में उसके अंदर उसको अपना कलर, यहाँ तक कि लेडीज का लेदर बैग, लेदर जैकेट्स वगैरह, जितना भी लेदर का प्रोसेस है वो भी इसके अंदर पॉसिबल है with all sites chemicals with the Italian equipments. Right. So basically idea क्या है कि आज की डेट में people are buying expensive bags, expensive suitcases, expensive shoes, sweat leather के shoes, फलाना shoes, धमकाना shoes. बट हमें ये खुद को नहीं पता है कि ये 10,000 के हमने जूते खरीद तो लिए, लेकिन इनकी ध्यान कैसे रखना है, इनका केयर कैसे करना है. एंड फॉर दैट पर्पस शू क्लीनिंग इज सच अ मार्केट विच इज ह्यूज. पीपल आर बाइंग शूज. आज की डेट में हर शहर में शोरूम पे शोरूम खुलते जा रहे हैं, लेकिन कोई शोरूम वाला ये नहीं बताता सर कि इस शूज की आप टेक केयर कैसे करें. एंड दैट इज वेयर द शू क्लीनिंग मशीन वी हैव गॉट इट फ्रॉम इटली इटसेल्फ. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन अंगामली, Kerala right now. We are opening with that, and we are already getting inquiries for 30 to 40 pair of shoes every single day. So that is a sort of market we are catering into. Elite is a one-stop cleaning solutions for retail, commercial, shoe cleaning, carpet cleaning, commercial laundry, duvet covers, blankets, anything and everything can be cleaned in Elite. That was the model of Elite. Now we'll move on to the next slide, and that is support, right? Before talking about the support, I'll tell you Fabrico Prime आपने बता दिया, Fabrico Elite आपने बता दिया. अब Fabrico हमने Prime भी खोल लिया, Elite भी खोल लिया. अब हम चलाएंगे कैसे इसको? तो जैसा आपने देखा है कि पोस्ट पेंडेमिक या प्री पेंडेमिक पिछले 4 से 5 सालों में ऑनलाइन का भी उतना ही शेयर है जितना ही ऑफलाइन का शेयर है. ऑनलाइन में इफ यू गो थ्रू द Fabrico app, this is the best possible app made in the laundry industry. If I talk about the website, it's clean, crisp, and as easy as possible. You can see in 4 tap of buttons you can book an order. 1 मिनट में कस्टमर Fabrico की ऐप से ऑर्डर लॉग इन करके बुक कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा विनर कौन है? कस्टमर. ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हमारे पास 3 माध्यम है, 3 से 4 माध्यम है. सबसे पहला माध्यम सोशल मीडिया है. अगर आप सोशल मीडिया पे Fabrico की एक्टिविटीज और एंगेजमेंट को अगर आप ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड गूगल तीनों पे ही उतना ही फोकस करते हैं, और इन्हीं तीनों से ही ऑनलाइन का ट्रैक्शन बढ़ता है. अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो फेसबुक पे इफ यू कैन गो थ्रू द फेसबुक पेज ऑफ Fabrico, there is a dedicated targeted ad which we run. Let's say कि मान लीजिए कि भोपाल में हमने Fabrico खोला, तो हम पूरे भोपाल को फेसबुक पे ये दिखा सकते हैं कि फला लाइव लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन स्टोर आपके नियर बाय स्टोर पे आया है. अब कस्टमर कैसे आएगा आपके पास? कस्टमर सबसे पहले क्या देखेगा कि भैया हाँ फेसबुक पे एक ऐड दिख लिया, कोई बाहर की कंपनी है जो यहाँ पे आके जिसने अपनी दुकान खोली है. फिर जब वो अपनी गाड़ी से निकलते हुए गुजरेगा और मेन रोड पे जब वो आपकी लाइव स्टोर देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा. फिर तीसरी बार नाउ विल कम टू द बीटीएल मार्केटिंग पार्ट. ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद हम करते हैं बीटीएल मार्केटिंग. बीटीएल मार्केटिंग में वी गो एज एग्रेसिव एज पॉसिबल. आज की डेट में भी अगर आप कस्टमर से सही लहजे से, सही तरीके से अगर आप एक पैम्फलेट दिखा के 2 मिनट बात करना चाहते हैं, सर ये हमारी सर्विस है, लाइव लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की हमारी सर्विस है, जो आपके नॉर्मल रेगुलर लोकल प्लेयर्स के बिल्कुल कंपैरिजन में आती है. हम कहीं पे भी किसी से भी महंगे बिल्कुल भी नहीं है. जो हमारी प्राइसिंग है वो लोकल ड्राई क्लीनर से मैच करती है. 10 रुपए ही ज्यादा होगी, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं होगी, राइट? तो जब कस्टमर को एक लाइव स्टोर दिखता है, ऑनलाइन ऐड दिखता है और एक पैम्फलेट हाथ में आ जाता है, तब उसके पास एक भी बार अगर ख्याल आया कि मुझे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की सर्विस यूज करनी है, तो जाहिर सी बात है एक बार तो हमें सर्विस देगा ही देगा. उसके बाद हमारा आता है ऑपरेशन सपोर्ट. एक बार हमने मार्केटिंग की, उससे हमारे पास कस्टमर आ गया. अगर मैं फ्रेंचाइजिंग रिटेल इंडस्ट्री की बात करूं तो 3 चीजों में समअप हो जाती है. जैसा अविनाश बोल रहे थे कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है.
तो मैं बताता हूँ 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, दूसरी, तीसरी, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अच्छी पुरानी कहावत है, पुराने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दुकान का मत्था चौड़ा हो, दुकान कॉर्नर पे हो, दुकान का एलिवेशन अच्छा हो तो दुकान कभी नहीं पिटती। तो हमारा फोकस ये रहता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज द लोकेशन। लोकेशन के बाद marketing, I have already told you about. Next part is the product. Location, 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 first three, then comes the product, then comes marketing. प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में मैंने एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आता हूं बैकएंड पार्ट पे। बैकएंड पार्ट में सर आपके पास क्या होता है, डैशबोर्ड। इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि सिटिंग इन लंदन यू कैन ऑपरेट अ फ्रेंचाइज इन भोपाल। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने सीआरएम में इंटीग्रेट की है। एक एक कपड़े का ट्रैक आपके पास होगा। आज मेरे पास 50 कपड़े ड्राई क्लीनिंग के आए, 50 कपड़े प्रोसेस हुए, 48 घंटे में डिलीवर होने थे, 24 में हुए या 72 में हुए। तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस और टर्न अराउंड टाइम की पूरी जानकारी हमें सीआरएम से मिल जाती है। उसी सीआरएम से आपको एक और जानकारी मिलती है, वो है आपकी पूरी बिलिंग, कि आपने कितनी बिलिंग की, आपका जीएसटी कितना बना, आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग उसी पे आ जाती है। आपको सेपरेट पेन एंड पेपर पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सेपरेट कोई एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं। तो इन शॉर्ट दिस सीआरएम सम्स इट ऑल, कि आपका टोटल जो रेवेन्यू है, जो आपका टोटल कैश काउंटर है, इट्स टेकन केयर ऑफ द सीआरएम इटसेल्फ। द मेन पार्ट इज, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, दैट आवर को-फाउंडर इज मिस्टर सुमित सक्सेना। ही इज हेडिंग द होल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जहां पे हमारा पूरा डेटा, एज मुकेश अंबानी हैड ऑलरेडी टोल्ड इन सम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि डेटा इज द न्यू ऑयल। अगर मान लीजिए हम भोपाल में या किसी, मान लीजिए विदिशा में या कहीं पे भी हम एक स्टोर खोलते हैं, वहां के पूरे कस्टमर, ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री के कस्टमर का डेटा जो हमारे पास है, दैट इज द मेन थिंग वी हैव। क्योंकि ये धोबी का बिजनेस है, कस्टमर रिटेंशन का बिजनेस है। एक बार कस्टमर आपके पास आ गया तो 10 साल वो कहीं नहीं जाएगा। पिज्जा बर्गर तो है नहीं कि आज पिज्जा खा लिया कल बर्गर खा लिया। अगर सर्विस उसको अच्छी मिल रही है तो वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल आप ही के साथ इंटैक्ट रहेगा। अब मैं आता हूं सर टेक्निकल सपोर्ट पे। टेक्निकल सपोर्ट में सीआरएम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज द पोस्ट सेल्स थिंग, राइट। प्री सेल्स से स्टार्ट करूंगा, पोस्ट सेल्स पे खत्म करूंगा। सबसे पहले हमने दुकान ढूंढवाई। दुकान ढूंढवाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन आवर कॉस्ट विल गो टू योर स्टोर एंड मेक श्योर दैट ही विल स्टे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, जब तक वो स्टोर लॉन्च नहीं हो जाता। उसकी प्रेजेंस वहां पे शुरुआत से लेके आखिरी तक रहेगी। दैट इज आवर प्रॉमिस। प्रोजेक्ट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर इटसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट, हमारा स्टोर बन गया। उसके बाद आता है मार्केटिंग का पार्ट। मार्केटिंग में मैंने जैसे आपको बताया, हम कोई भी कोना नहीं छोड़ते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ऑनलाइन में 3 चीजें होती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल। तीनों पे फैब्रिको is as strong as possible. We have an in-house digital marketing team, in-house graphic designing team, in-house content writing team. Everything is taken care of in the online part. Offline में सर 3 चीजें चलती हैं। सबसे पहली चीज होती है पैम्पलेटिंग। पैम्पलेटिंग न्यूज़पेपर्स में जाती है, लोग फेंक देते हैं, इसलिए हम पैम्पलेटिंग न्यूज़पेपर से ज्यादा हम ये फोकस करते हैं कि जब हमारा स्टोर लॉन्च हो, उस टाइम पे हमारा जो बेसिकली हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का टीम है, वो घर घर जाके घंटी बजा बजा के जाके समझा के आता है। 10,000 घर, 5,000 घर, 500 घर, 1,000 घर, जितने भी घर उस एरिया में हैं, वी मेक श्योर कि ऑल द शॉप्स आर कवर्ड, ऑल द हाउस होल्ड आर कवर्ड। आज की डेट में भी हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर आप व्यवहार से बनाएंगे बिजनेस तो वो बनेगा। प्यार से अगर आप किसी को समझाएंगे तो वो सर्विस भी यूज करेगा, और उसके बाद आपकी क्वालिटी पे सब कुछ आएगा, राइट। डोर टू डोर मार्केटिंग हो गई, बीटीएल एक्टिविटीज हो गई, कैनोपी एक्टिविटीज हो गई। इन सब चीजों के दौरान हमारा पूरा फोकस होता है ऐप डाउनलोड पे, कि अगर हम कस्टमर के पास गए हैं, कस्टमर से रिक्वेस्ट करके उसके फोन में फैब्रिको की ऐप डाल देते हैं। कस्टमर मान लीजिए बिल्कुल तुरंत ऑर्डर नहीं करता, लेकिन जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, वो ये जरूर सोचेगा, भाई मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं 4 बटन दबाऊंगा तो मेरा पास एक लड़का आ जाएगा पिकअप करने के लिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट भी उसी से कर सकता हूँ, 24 घंटे में मेरे कपड़े मिल जाएंगे। क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है, उसके नियर बाय स्टोर है तो वो बंदा जाके उस पर्टिकुलर स्टोर पे ये भी चेक कर लेगा कि भैया मेरे कपड़ों के साथ उनका ट्रीटमेंट कैसा है। अब ऐप डाउनलोड हो गया, ऑर्डर जनरेशन इज ऑटोमेटिक। आज की डेट में, पहले लोगों की कहावत थी कि यूपी में ओला उबर नहीं चलेगा, आज की डेट में लखनऊ जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो बिना ओला और उबर के लखनऊ नहीं चलता। सिमिलरली अगर मैं फैब्रिको की बात करूं, एर्नाकुलम में, केरला इज द टफेस्ट मार्केट टू डू एनी बिजनेस।
वी स्टार्टेड इन केरला टू प्रूव आवरसेल्व्स कि वहां पे सबसे ज्यादा लिटरेट लोग रहते हैं जिनको टेक्नोलॉजी और सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर आप ट्रिवेंड्रम में उतरते हो एयरपोर्ट से और किसी भी डायरेक्शन में जाते हो, यू विल फाइंड Fabrico at every nook and corner. All the cities in Kerala have Fabrico. Ernakulam has 9 stores, Trivandrum has 3 stores, Cheplasari has a store, Pentalmanda has a store. Similarly, if I talk about UP is again a very tricky market which we started and we made sure that we will prove ourselves in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में अगर आप लखनऊ में घुसते हैं, लखनऊ से अगर आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, तुलसीपुर, बलिया, गोरखपुर, बनारस, मुगल सराय, मिर्जापुर, everywhere you will find Fabrico. And this is the best possible marketing, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में 15 से 20 स्टोर आ जाते हैं तो बहराइच का कस्टमर गोंडा को बोलता है, लखनऊ का स्टोर कस्टमर कानपुर को बोलेगा, कानपुर का कस्टमर गोरखपुर को बोलेगा, क्योंकि वो आसपास के माइग्रेंट्स होते हैं, वो आसपास की सिटीज में ट्रैवल करते हैं। अब आता हूं मैं कस्टमर रिटेंशन पे। स्टोर हमारा खुल गया, स्टोर हमने पूरी प्रॉपर मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग के बाद, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं पीछे ऑपरेशंस बताऊंगा आपको। स्टोर हमारा खुल गया, हमने पूरी मार्केटिंग कर दी, टेक्नोलॉजी सारी इन प्लेस कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे बिजनेस का आता है मैन पावर। मैन पावर, हायरिंग, ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट की पूरी गारंटी हमारी। we will write in the agreement and give you कि 5 साल में अगर आपका बंदा आता है, जाता है, कुछ भी करता है, पूरा सपोर्ट हम उसको देते हैं। उस मैन पावर की हायरिंग, ट्रेनिंग के बाद भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्टोर ऑडिट। अगर कि हमारा बंदा कितने, मान लीजिए 100 पीस कर रहा है, 150 पीस प्रेसिंग कर रहा है, 300 पीस प्रेसिंग कर रहा है, क्या वो अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें मेक श्योर करने के लिए हम स्टोर ऑडिट पे आते हैं। नया स्टोर, इसका मतलब ये नहीं कि नया स्टोर हमने 1 महीने में छोड़ दिया। हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे ऑडिट मैनेजर्स at least 15 days, 20 days, week on week, everywhere our audit managers are there. They make sure that they'll go to your store, check the processing, check the CRM, check the manual billing, check the computer billing, check the complete finished product quality of the garments, pick up and drop की पूरी तैयारी, हर एक पैकेजिंग मटेरियल कैसा जा रहा है, आयनिंग कैसी हो रही है, क्लीनिंग कैसी हो रही है, वॉशिंग कैसी हो रही है, सब कुछ, starting from the first process to the finished process. And this audit has actually made Fabrico what it is. The support, I mean, Fabrico is not a franchising company. We are a hardcore laundry and dry cleaning company. हमें अपना काम आता है कि हमें एक कस्टमर को कैसे खुश करना है। कस्टमर खुश तो फ्रेंचाइजी खुश तो हम खुश। That is how we basically work on the whole support system. Now, the most important part of anything and everything beyond the business, अगर हम किसी के साथ भी बिजनेस किसी भी टर्म्स में घुसना चाहते हैं तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं पैशन और क्यूरियोसिटी। तो फैब्रिको में सिर्फ एक ही चीज है जो, वी आर एक्चुअली द फास्टेस्ट फ्रेंचाइजिंग कंपनी इन इंडिया। हमने पिछले 6 महीने में कोविड टाइम्स में 60 शहर खोले हैं, 57 शहर टू बी प्रिसाइज, एंड दैट हैज ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी एंड पैशन वी हैव, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट to BTL marketing, to online marketing, to technology of the stuff. Everything is in house. Fabrico ने सब कुछ घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के बनाया है। इस पर्टिकुलर बिजनेस की इंच अगर देखी जाए तो फैब्रिको ने अपने हिसाब से क्रिएट की है, और यही पैशन एंड क्यूरियोसिटी की वजह से दैट इज द रीजन दैट फैब्रिको हैज बिकम सक्सेसफुल to all the franchise. For example, we have launched 3 franchises in Chhattisgarh. Just an example, because last week it happened. Whomsoever is interested can visit Raipur and Bilaspur and see the sort of response we have got. All the things I'm telling you from the start, की BTL marketing, online marketing, इतने का Avinash was telling that 5,000 का बिजनेस, 8,000 का बिजनेस, 9,000 का बिजनेस, 10,000 का बिजनेस, जितनी भी हम बातें बोल रहे हैं एग्जैक्ट नंबर्स के साथ आप स्टोर्स पे जाके ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले दिन 4,000 था, दूसरे दिन 5,000 था, तीसरे दिन 6,000 था, चौथे दिन 8,000 था, पांचवें दिन 11,000 था। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। You can visit the stores, talk to the franchisees in those places, talk about the marketing support, talk about the BTL marketing support. Our team is active 24/7 to make sure that whomsoever has put faith, क्योंकि सबका पैसा बहुत मेहनत का पैसा होता है, 20-25 लाख रुपए की बात है, कोई छोटा सा मैटर तो है नहीं। उस 20-25 लाख रुपए के बदले जो हम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट देते हैं, एवरी फ्रेंचाइजी वी कैन वाउच फॉर कि वो ये कंप्लेंट नहीं कभी करेंगे कि फैब्रिको हमारे लिए खड़ा नहीं था। आई हैव personally made sure all the franchisees have my number कि सर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी डिपार्टमेंट में आ रही है,
आप मुझे रात को 12 बजे तक कॉल करिए और बताइए कि सर ये वाली दिक्कत है, हम आपकी प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही रिजॉल्व करेंगे। हमारे कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, 7 दिन हमारा ऑफिस खुलता है, 7 दिन हमारे स्टोर्स खुलते हैं। अब जाहिर सी बात है छुट्टियां लोग लेते हैं, लेकिन वी मेक श्योर कि हमारी फ्रेंचाइजीज को 24/7, इफ आई मीन 24/7, it is exactly 24/7 support vehicle. To sum it up, yes, we are a young, not exactly young, we have people who have experienced in this industry for past 20-25 years, young yet experienced team who are there to make sure that we sort all the things. एक चीज मैं मिस कर गया था, सप्लाई चेन। थैंक यू फॉर द स्लाइड, प्लीज शेयर द सप्लाई चेन। राइट, मैन पावर आपका सॉर्ट हो गया, आपका टेक्निकल सॉर्ट हो गया, मार्केटिंग आपकी सॉर्ट हो गई, प्रोडक्ट आपका सॉर्ट हो गया। अब सप्लाई चेन में आता क्या है, इस धंधे की सबसे अच्छी बात क्या है, सप्लाई चेन में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है, दूसरा आपका डिटर्जेंट होता है। एज अविनाश हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, Sites is the company which we have an exclusive tie-up, right? Directly from Germany itself. सारा का सारा stuff we get it from Germany. सारा we store it in the warehouses. For example, छत्तीसगढ़ में हमारा वेयर हाउस है, एर्नाकुलम में हमारा वेयर हाउस है, लखनऊ में हमारा वेयर हाउस है, दिल्ली में हमारा वेयर हाउस है, so that we can save on the transportation cost of each and every stuff delivered to the franchisee at any given point of time. कभी ये मोमेंट नहीं आना चाहिए हमारी फ्रेंचाइजी के टाइम पे कि हमारी पॉलिथीन खत्म हो गई, हमारा केमिकल खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। ऑडिटिंग के टाइम पे हम ये ध्यान रखते हैं कि अगले 10 दिन का 15 दिन का स्टॉक उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी पे अवेलेबल होना ही चाहिए। Everything you get is on pricing with the company itself. So I hope I have covered all the verticals, starting from projects, marketing, product, supply chain, technical support, right? And post this, I would request Priya to take some questions from Yes, sir. all the franchisees. I mean, all the people who are there can raise their own questions, and उसके बाद हमें शायद ज्यादा आसानी होगी प्रोडक्ट को समझाने की भी। Yes, sir. Chat box में कुछ questions आए हैं. The first question is from Mr. Ramesh from Srinagar. उन्होंने Okay. पूछा है that why Fabrico focus on 2-tier cities more? Okay, very good. Basically, question from thank you, Mr. Ramesh, and thank you for joining us here today. 2-tier cities, सर हमने पूरा का पूरा फोकस 2-tier cities पे हमारा करने का ये था क्योंकि वहां पे ये चीज बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी। किसी भी छोटे शहर में अगर आप जाके देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो पिछले 10 सालों में या तो एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुली या तो खुली ही नहीं। वहां पे मोनोपोली बनी हुई है पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर्स की। अब मैं पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर्स की बात करूं तो उनसे हम कहाँ डिफरेंट स्टैंड करते हैं या क्यों हम जाते हैं उनको चैलेंज करने। जाहिर सी बात है, किसी भी छोटे शहर में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है वो ये अग्री करेंगे कि हर छोटे शहर में 5 से 6 दिन से पहले ड्राई क्लीनिंग के कपड़े, लॉन्ड्री के कपड़े मिलते ही नहीं है। प्लस पिकअप और डिलीवरी की सर्विस नहीं होती है। कस्टमर को क्या चाहिए, आज का कस्टमर है जिसके पास समय नहीं है। Fabrico delivers garments in 24 hours to 48 hours. In fact, we do express delivery of dry cleaning items in 12 hours. तो छोटे शहरों में सबसे पहली चीज हमने क्या किया, उनका टर्न अराउंड टाइम सॉल्व किया। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व की वो थी क्लैरिटी। किसी को नहीं पता कि हमारे कपड़ों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। जब छोटे शहरों में 2-tier सिटीज में कस्टमर देखता है 7-8 फीट की मशीनें हो रही हैं, सामने उसके कपड़े ड्राई क्लीन या धुल रहे हैं, तो कस्टमर को एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और कस्टमर फॉर एग्जांपल छोटे शहर का अपने कैपिटल शहर पे जाके ड्राई क्लीनिंग देता नहीं है, जाके अपने ही शहर में प्रोसेस करता है, राइट? So this is the reason, maybe if I have justified all the pointers, that this is the reason we have entered into the 2-tier cities, जहाँ पे competition frankly speaking हमारे लिए zero है और इसीलिए हमारे stores immediately successful हो जाते हैं। Yes, sir. Right. Hope Ramesh आपको आपका आंसर मिल गया होगा. Sir, second question is from Mr. Shunil. He is from Delhi. So उन्होंने पूछा है that what are the models you prefer for Delhi and Bangalore? Okay, got it. Superb. Really a nice question. Bangalore और दिल्ली के लिए I would prefer Elite. Why I prefer Elite? First of all, जैसा शशि जी ने एक्सप्लेन किया था, अविनाश ने एक्सप्लेन किया था कि 400 से 500 स्क्वायर फीट की दुकानें हम दिल्ली और बैंगलोर में नहीं ढूंढ सकते मेन एरिया में, लेकिन 100 स्क्वायर फीट के कलेक्शन पॉइंट वी कैन फाइंड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी. Idea is कि if we have 400 square feet counters, obviously we have 4 collection points, मतलब जहां से हमारा 4 जगह से बिजनेस आ रहा है, 100 स्क्वायर फीट की दुकान का किराया कम होगा और जो हमारा फैक्ट्री सेटअप होगा वो बैकएंड में भी हो सकता है.
किसी भी रिटेल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है रियल एस्टेट, किराया। अगर हम किराया बचा सकते हैं, किराए में अगर हम बिना अपनी लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किए अगर हम किराया बचा सकते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बड़े शहरों में 500 स्क्वायर फीट के 50 स्टोर खोल के कोई फायदा नहीं है। We cannot even get the proper ROI, and that is the result that we are getting elite into the system for bigger cities, right? I hope I have cleared the question. Next question, All please. right. All the people can please drop their questions in the chat box. We'll answer all of them one by one. Yeah. So third question is from an investor who is interested in 2 cities. Okay. Right. And he asked that what is your marketing plan for Meerut plus Noida? Okay, great. Again, किसने his question मतलब किसका question है ये? So I'll address him. He is Suryas. Okay, sure. So Mr. Suryash, my reply would be is कि जैसे मैं मेरठ को टारगेट करता हूँ, नोएडा को टारगेट करता हूँ। मेरठ में क्या है कि मेरे पास माइग्रेंट ऑडियंस बहुत कम है, सारा का सारा शहर वहीं पे रहता है, कोई बाहर के लोग मेरठ में आके रहते नहीं है। तो वहां पे जो मैं मार्केटिंग करूंगा वो मैं एक अच्छा सा ग्रैंड लॉन्च करूंगा जहां के 150 बड़े परिवारों को बुलाऊंगा। सबसे पहली चीज होती है वर्ड टू वर्ड मार्केटिंग, जो लॉन्च पे आने के बाद 10, 20, 50 कस्टमर मेरा पहला बनाने का मुद्दा वहीं लॉन्च पे ही होगा, ग्रैंड लॉन्च। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फैब्रिको के हमेशा ग्रैंड लॉन्चेस होते हैं और हम शहर को बता देते हैं कि फैब्रिको आ गया है। मेरठ में ही डोर टू डोर एक्टिविटी पे मैं सबसे पहला फोकस करूंगा कि हर मोहल्ले में हर मकान में जाके हमारा बंदा बोले, क्योंकि छोटे शहरों में अच्छी बात ये होती है कि लोगों के पास समय होता है, लोग सुनते हैं कि क्या बता रहा है आदमी, राइट। जैसे नोएडा जैसे शहर में कि आप जाओगे तो अपार्टमेंट से आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री मिल भी गई तो आपको ये परमिशन नहीं है कि आप हर दरवाजे पे नॉक करके आप ये बता पाओ, राइट। तो छोटे शहरों में हम बीटीएल पे पूरा फोकस करते हैं, डोर टू डोर एक्टिविटीज, कैनोपी एक्टिविटीज, न्यूज़पेपर इंसर्शंस, हाफ पेज एड, क्योंकि छोटे शहरों में जो वहां का जागरण या भास्कर होता है उसमें अगर हमें हाफ पेज एड डालना है तो दैट इज नॉट एज एक्सपेंसिव, दैट एड विल बी इन नोएडा। अब मैं नोएडा पे आता हूँ। नोएडा इज अ कंप्लीट कॉस्मोपॉलिटन सॉर्ट ऑफ सिटी जहां पे माइग्रेंट्स हर जगह के हैं। कई सारे लोग तो साउथ इंडिया से भी आए हुए हैं, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोएडा में कंपनीज कौन कौन सी है? पेटीएम जैसी बड़ी कंपनीज आपकी नोएडा से ही बॉन्ड हुई है। पेटीएम के पास आज की डेट में, एग्जांपल ले रहा हूँ, पेटीएम के पास आज की डेट में 20,000 एम्प्लॉइज है जो नोएडा ऑफिस में बैठते हैं, इन एंड अराउंड ऑल द ऑफिसेज ऑफ पेटीएम। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है वहां पे हमारा बिजनेस जनरेट करने का? दैट इज द कॉर्पोरेट क्लाइंट। उस कॉर्पोरेट क्लाइंट को टारगेट करने के लिए हम ऑनलाइन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो ऑल दीज स्टफ, राइट, प्लस द ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग। अब ऑनलाइन में हमने टारगेट कर लिया, पूरी ऑडियंस को दिखा दिया भैया हमारे पास एप्लीकेशन है, भैया हमारे पास वेबसाइट है, यू कम हियर, ऑनलाइन पेमेंट इज सॉर्टेड, टर्न अराउंड टाइम इज सॉर्टेड। यहाँ के कस्टमर को किसी को कॉल करना नहीं अच्छा लगता, यहाँ का कस्टमर बहुत फिनिकी है। 6 से 7 बजे का अगर आपने टाइम दिया है तो 6 से 7 बजे आपको पहुंचना है। अब 6 से 7 बजे को अगर हमें राइडर को पहुंचाना है तो जाहिर सी बात है उनको टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का ही यूज करके हम कस्टमर का बेसिकली रेवेन्यू बढ़ाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं इसमें बीटीएल लेके आता हूं तो बीटीएल में हम क्या करते हैं, हर उस अपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल सुयश जी को अगर नोएडा में खोलना है तो ही हैज टू गेट परमिशन फ्रॉम ऑल द अथॉरिटीज एंड आवर फैब्रिको टीम विल बी ऑलरेडी देयर holding the canopy activity and making sure that all the customers in that particular apartment are coming to us. And one more important point, what I missed about big cities is, for example, नोएडा है, जैसे सर ने सवाल पूछा, तो नोएडा में क्या लाइन से अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने एक कलेक्शन पॉइंट खोलते हैं जहां पे 400 से 500 बालकनी से कम हमारा स्टोर विजिबल हो। अगर वो बालकनी में आता है कपड़े सुखाने या जो भी एक्टिविटी करने, अगर वो सामने बार बार देख रहा है ना कि हमारा स्टोर है 400-500 फ्लैट, तो आपको कोई मार्केटिंग उस अपार्टमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि अगर इसके पास कपड़े आएंगे तो बिल्डिंग से निकल के तुरंत बाहर आके देगा, नहीं तो फोन करके बोल देगा भैया ऐसा है, कपड़े आके ले जाओ। तो देयर आर बेसिक डिफरेंसेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग इन दीज 2 cities, राइट। सर सुयश जी का एक और क्वेश्चन है दैट मार्केटिंग प्लान जमशेदपुर का क्या होगा? अच्छा, सो जमशेदपुर इज अ सिटी जहां पे मैं कहूंगा तो दोनों चीजें करेंगे, मतलब करते तो दोनों चीजें हर जगह है, लेकिन जमशेदपुर जैसे शहर में भी अगर मैं, टाटा नगर है, बहुत अच्छा प्रोमिनेंट शहर है, अपकमिंग मार्केट है वहां पे, एंड पीपल आर बेसिकली बाइंग स्टफ देयर, नाउ शोरूम्स आ रहे हैं और सारी चीजें आ रही हैं। जमशेदपुर में अगर हम मेक श्योर करेंगे कि मान लीजिए हम XYZ नगर में खोल रहे हैं,
तो मेरा पहला फोकस होगा उस XYZ नगर में सारी ऑडियंस जो मोबाइल चलाती है उसको मैं दिखा दूं कि वहां पे फैब्रिको आ गया है। दूसरी चीज, उन्हीं ऑडियंस को मैं जाके बताऊंगा, मतलब ऑब्वियसली हमारी टीम जाके बताएगी सर फैब्रिको आ गया है। 1 महीने का एग्रेसिव BTL कैंपेन मैं उस शहर में करूंगा, उस पर्टिकुलर 3-4 किलोमीटर के रेडियस में, ताकि हर उस आदमी को, हर उस कस्टमर को, जो कस्टमर हमारा बन सकता है या ऑलरेडी कोई लॉन्ड्री सर्विस यूज करता हो, या बेसिकली उसको ये एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हम आए हैं आपके शहर में, और जो करंट प्लेयर है वो क्या देता है और हम क्या देते हैं, वो कंपैरिजन करके हम कस्टमर को नॉलेज बताएंगे, वो कस्टमर को वो एक्सप्लेनेशन देंगे, वो कस्टमर को वो बेसिकली इंसाइट्स देंगे, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड व्हाई बेसिकली फैब्रिको विल बी beneficial for you in every sense. So I'll sum it up. Communication. We'll be communicating to each and every customer, every audience through online as well as offline mediums both. Okay, sir. Right. This is the last question we'll be taking up. This question is from Mr. Shunil, and he said that what is the reason behind Fabrico growth? Okay. सो फैब्रिको ग्रोथ का सर कारण एक ही है, मतलब हमारी क्यूरियोसिटी, पैशन, जुनून, और उसके अलावा मेरे ख्याल से चाहे हम लॉन्ड्री का काम करें, चाहे हम रेस्टोरेंट चलाएं, चाहे हम बाल काटें, चाहे हम रोड बनाएं, चाहे हम बिल्डिंग बनाएं, सबसे पहली चीज होती है क्यूरियोसिटी। अगर हम पैशनेट हैं तो हमारी जो टीम है, अगर मैंने जैसे बताया 7 दिन हमारा ऑफिस खुलता है, यू आर फ्री टू कम हियर एंड चेक इट आउट इन लखनऊ। यू कैन कम हियर, सी कि हम 7 दिन काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड हैज मेड बिजनेसेस, थोड़ा सा तो स्लाइट फर्क आया ही है, लेकिन एज दे से व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग एंड रिजल्ट्स एवरीवन कैन सी। वी आर लॉन्चिंग 2 स्टोर्स एवरी वीक एंड इन रिटेल, आई मीन आई डोंट सी पीपल टेल दैट रिटेल हैज, रिटेल में ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा काम करने वालों के लिए तो सब कुछ मतलब आसानी होता है, मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा। यस, so that hard work, passion, sincerity towards our work, dedication and devotion towards Fabrico of each and every employee has brought Fabrico here. I would like to add something, like in our yes, please, company, please, Avinash. In 3 words, I would like to define why success is, why Fabrico is seeing the success: hard work, dedication, and most important, persistence. Right. Yeah. Yes. या परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, क्योंकि हम हताश निराश कभी नहीं होते। जब हम कोरोना में हताश निराश नहीं हुए तो हमारे लिए ये है कि इमेजिन कोविड फ्री वर्ल्ड फॉर फैब्रिको। अगर हम कोविड के साथ अगर हम इतनी ग्रोथ कर सकते हैं, इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जिस दिन भगवान करे कोविड फ्री वर्ल्ड वापस से आए, लेकिन जिस दिन वो होगा उस दिन फैब्रिको, आई मीन फैब्रिको विल बी, वी फील दैट फैब्रिको विल बी द बिगेस्ट लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग कंपनी इंडिया हैज एवर सीन। Okay, so let's wrap up here. Yeah, and just to sum up, yeah. So I would like to, yeah, please, Shashiji, please, Shashiji, please. I just want few questions. If Mr. Sekhar Singh of Jamshedpur, if he's here, okay, can you just okay, sure. I just want him to take few questions if he wants, Mr. Sekhar. Hello. Please unmute Shekhar sir. Sekhar. Hello. Shekhar ji ko unmute, हाँ, yeah. Hello, Bhupender ji, Sashi ji, how are you? I'm good, sir. I'm good, sir. Sir, namaste, sir. How are you? Very engrossing session, and I wish Fabrico all the best. And सुन के काफी encouraging लगा, और आप लोग की young team काफी मेहनत कर रही है, and I am sure that in very short span we'll see you on a pan-India level. We are already in touch with Sashi ji and working out a few things. And thanks everybody for the nice engrossing session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. And on a lighter note, Shashi ji is the youngest member of our family. Going by the energy he has. Yeah. Right. Yes. Thank you, sir. Thank you for participating, and I hope to see you soon, sir. I'll be in town very soon, sir, and I'll give you a call for a meeting. Thank you so much to every participant who has joined. Namaste and Tata. Bye. Thank you, everyone. Thank you.